Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So we'll cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the news with some additional information so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So today is 7th of January and these are the list of the topic for the day. Avian flu infection epicenter in India. Many cases has been reported with regards to the bird flu. The second topic is IRDAI to roll out the standard home insurance policy. The third topic is science and technology and innovation policy. The second last topic is that China has denied entry to the WHO expert with regards to the origin of COVID-19 vaccine. And the last topic is boosting India with maritime domain awareness. So this is an editorial reported again in the Hindu. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday questions. So without any further ado, let's get started with the topic. The first topic, that is avian flu infection epicenter in India. The news has been reported in the Hindu and many of the cases has been reported in Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Kerala. So talking about the relevance of this news, this is significant for your general studies paper 3 and very much relevant for your prelims examination as a concept of avian flu or the bird flu. So avian flu has been reported in the 12 epicenter of the 4th state. These 4 states include Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Kerala. But the species, the variety of the avian are different in the different location. I will tell you कि कौन कौन से locations में किस किस avian पे या किस प्रजाति पे असर हुई है. मैं बात करें अगर डायरेक्शंस की, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्ट किया है to all the state government that they should be following the 2015 National Avian Influenza Plan according to the press statement that was released by the Ministry of Fishes and Animal Husbandry. So they have alerted all the state of the India that every state should take a note that the avian flu can be detrimental to their population, वहाँ के citizen के लिए. And talking about the avian flu, the variety that have been found in many states, the bird flu have confirmed. अगर बात करें राजस्थान में, तो वहाँ पे क्रोस पे सबसे ज़्यादा इनकी इन्फेक्शन देखने को मिली है. In Madhya Pradesh, the migratory birds were infected. Talking about हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पोल्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है. And in Kerala, ducks were the most infected by the avian flu, or you can also call it as bird flu. Now talking about the avian influenza virus, so what is bird flu? तो एक तरह का ये highly contagious disease है that infect species of food producing birds and that include chickens. इसमें जो सबसे ज़्यादा infected होते हैं that include chicken, turkeys, quails, guineas, fowls, etc. Right? और occasionally अगर बात करें तो mammals include human that may contract as an avian influenza. और एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें उसके कुछ सब टाइप्स होते हैं. द सब टाइप्स इंक्लूड AH5N1, AH7N9 एंड AH9N2. तो H5N1 जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें कंटेजियस की या सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है वो AH5N1 ही होती है. नो व्हाट इज़ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस स्टेटस, अगर बात करें अभी प्रेजेंट स्टेटस की, तो ये सर्कुलेटरी वर्ल्ड वाइड दी गई है कि 4 नॉन मेजर आउटब्रेक हो चुके हैं पिछले लास्ट सेंचुरी तक में. एंड इंडिया हैज़ नोटेड इट्स फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा इन 2006 एंड दिस वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इंडिया हैज़ ऑलरेडी मेड अ पॉलिसी विथ रिगार्ड्स टू दिस. नाउ अगर इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज़ नॉट येट रिपोर्टेड. अभी जो प्रेजेंट केस आई है उसमें कोई ह्यूमन इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं किए गए हैं. एंड डिजीज़ हैज़ बिन एन एनिमल ऑरिजिन. तो जो ऑरिजिन है वो एनिमल ऑरिजिन है. और WHO की अगर गाइडलाइन के मुताबिक चले, जो WHO की गाइडलाइन है एवियन इन्फ्लुएंजा पे, सो इफ टॉकिंग अबाउट द पोल्ट्री, अगर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है क्या एग्स या फिर चिकन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सो WHO ने क्लियरली मेंशन किया कि इफ़ एग एंड चिकन इज़ वेल कुक्ड up to 70 degrees Celsius, it is safe to have it, right? But again, there is another level of caution that people tend to take. और इस तरह की चीज़ों में ये देखा गया कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है. नाउ द स्प्रेड ऑफ वायरस, टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ वायरस,
So there's no direct evidence that AI virus can be transmitted to human via consumption of contaminated poultry products. So still there's no confirmation from the expert कि अभी ये human में गई है. But again the caution need to be taken because we already had a COVID-19 virus infection जहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका है. Now in India, the disease is spread mainly from the migratory birds coming to the country during the winter month, that is from September, October and February, March. So this can be a very possible region कि इस टाइम पे सीजन है जो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से आ रहे हैं, तो कुछ भी वायरसेस माइग्रेट हो सकती है फ्रॉम अदर कंट्री टू इंडिया. ना गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने 2005 में ही जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने प्रिपेयर किया था एक्शन प्लान, और उस प्लान को रिवाइज किया गया है इन 2006, 2012, 2015. And a further plan was also being created into 2021 for the guideline for the state government for the prevention, control, containment of the avian influenza. जो एवियन इन्फ्लुएंजाज है उसको कैसे रोका जा सके, तो ये जो नोडल मिनिस्ट्री है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं ताकि इसको फैलने से रोका जा सके. राइट. Now the second topic, that is IRDAI to roll out the standard home insurance policy. This is again a very significant and important news. This will help you in your general studies paper 2 and also help in the prelims examination because जो concepts हैं इसमें वो prelims में बहुत ही ज़्यादा relevant है. So the Insurance Regulatory and Development Authority of India, which are known as IRDAI, उन्होंने रिसेंटली एक स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेकर के आए. इस होम पॉलिसी में बहुत सारे इसके सब टाइप्स हैं, मैं एक एक करके डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. सो द पॉलिसी विल कवर द रिस्क एसोसिएटेड विद द नेचुरल क्लाइमेटीज. जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से लोगों को नुकसान हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एक तरह से उनकी बिल्डिंग्स की, उनकी होम की, उनकी फैक्ट्रीज की इंश्योरेंस की जाएगी. दिस वुड इंक्लूड साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक एंड फायर. सो जो IRDA है उन्होंने अनाउंस किया था कि 2 स्कीम दे आर लॉन्चिंग टू कवर द इंश्योरेंस फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. जो हमारी MSME सेक्टर है, बिकॉज दीज आर मोस्टली प्रोन टू दीज ऑल ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटीज दैट हैज़ ऑलवेज बीन हैपनिंग इन इंडिया. और 2020 में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल क्लाइमेटी भी रही थी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द थिंग्स हैज़ बिन टेकन प्लेस. नाउ दो जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज़ भारत गृह रक्षा. तो आप जिस नाम से इसको समझ सकते हैं ये क्या है. दिस प्रपोज्ड द भारत गृह रक्षा कवर द जनरल होम कंटेंट ऑटोमेटिकली. इसमें क्या है कि विदाउट एनी डिक्लेरेशन आपको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड जो बिल्डिंग की है वो मिलेगी विथ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ भारत गृह रक्षा. उसके बाद IRDA के मुताबिक जो भारत गृह रक्षा है दैट विल कवर अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ perils दैट इंक्लूड. कौन कौन चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड होगी. द फर्स्ट इंक्लूड फायर, natural catastrophes like storms, cyclone, typhoons, tempest, hurricanes, tornado. ये बहुत सारे varieties है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगी. उसके बाद अगर फॉरेस्ट, जंगल या बुश फायर होती है दिस वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड. इम्पैक्ट एंड डैमेज ऑफ एनी काइंड ऑफ राइट, स्ट्राइक, malicious damages, act of terrorism and busting would also be covered under the Bharat Grih Raksha. Now, overflowing of the water tank, apparatus of the pipes, leakages from the automatic sprinkler installation and thefts within 7 days from the occurrence of the event would also be covered under the Bharat Grih Raksha. So, prelims examination में यहाँ पे कोई भी statement, 2 statement या single statement में आपसे पूछे जा सकते हैं. Now, the other statement is भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा. तो बात करें सूक्ष्म ये MSME के लिए है, तो IRDA ने अनाउंस किया था कि ये प्रोवाइड करेगी बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, प्लांट और मशीनरीज, ताकि जो इंटरप्राइजेज हैं उनकी जो वैल्यू रिस्क है उनको अश्योर किया जा सके एट द लोकेशन अप टू 5 करोड़ रुपीज तक. एंड द पॉलिसी टू ऑफर्स द कवर्स अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ perils दैट इंक्लूड पॉलिसी मेंट फॉर द ड्यूलिंग्स. और भी ऐसे जो गृह रक्षा में चीज़ें इंक्लूडेड है उसको भी भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में भी रखा जाएगा. नाउ भारत लघु उद्यम सुरक्षा, दिस इज ऑल अबाउट द MSME. जो लघु उद्योग है, खास करके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, प्लांट, मशीन्स, स्टॉक्स एंड एसेट एंटरप्राइजेज वुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. और यहाँ पे जो लोकेशन है उसकी अमाउंट 5 करोड़ तक भी की गई है एंड इट शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज एज द पॉलिसी कमेंसमेंट डेट. And the range of perils against which the insurance is offered is similar to the policy meant for the micro level enterprises. बात करें IRDAI की,
तो भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा जो है और भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी जो है दैट वुड बी इनिशियली फॉर द एमएसएमई, जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उनके लिए डेडिकेटेड होगी। तो अगर आप एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी जनरल स्टडीज में क्वेश्चन लिख रहे हैं, मोस्टली इन जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3, तो यू शुड डेफिनेटली कोट दिस बिकॉज दिस वुड बी वेरी रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द नीड ऑफ इनिशिएटिव, क्या ऐसी जरूरत थी कि गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने पड़े? तो खास करके अगर बात करें IRDA के, तो दे हैव कम अप विद द country after witnessed massive loss of human life during the natural calamity and the recent firefights भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया में. So IRDA has taken an initiative that it is pivotal for the country like India that the buildings, the MSME sector should be insured. और पॉलिसी ऑफर करेगी 2 ऑप्शनल कवर की. द फर्स्ट वुड बी इंश्योरेंस फॉर द वैल्यूएबल कंटेंट्स लाइक ज्वेलरीज, क्रूशियस एंड पर्सनल इंसिडेंट इंश्योर्ड और स्पाउस ड्यू टू एनी इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द पॉलिसी. तो कोई भी अगर ज्वेलरी किसी की लॉस होती है या इस तरह के कोई क्लैमिटी की वजह से भी लॉस होता है तो दैट वुड बी ऑल्सो कवर्ड. Now IRDA has said that the standard fire special peril that is known as SFSP would be provided with the revised that is All India Fire Tariff 2001. तो उसको रिप्लेस कर दिया गया नए पॉलिसी के साथ सो दैट देयर कुड बी बेटर रेगुलेशन इन द कंट्री. और IRDA ने इन सारी चीज़ों को रेगुलेशन की जो जिम्मेवारी है इंडिया में वो IRDAI की ही होती है. Now coming to the other news, that is science, technology and innovation policy. So this has been reported in the Hindu and the relevance of this news would be in general studies paper 2, also will contribute to a prelims examination. So the recently proposed science, technology and innovation policy, जो कि एक पॉलिसी है जिसका एम है टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम वेयर रिसर्चर इन इंडिया कैन एक्सेस टू द रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ टॉप जर्नल एट नो कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को जर्नल प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी प्रपोज की थी. इस पॉलिसी के अंदर जो प्रपोज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये एक इनिशिएटिव ली गई है कि जितने भी इंपॉर्टेंट जर्नल्स होंगे, फॉरेन के जर्नल्स होंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको कराया जाएगा. प्रेजेंट में देखा जाए तो इनकी जो पूरी कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 1500 करोड़ रुपीज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ती है फॉर दिस जर्नल एंड the people, the student are not able to afford that amount, right? So this would be very important in the terms of development, science and technology and innovation in India. तो प्राइस सब्सक्रिप्शन की बात करें दैट इज़ वेरी हाई और इंडिविजुअल कॉलेजेस के लिए उनके साथ नेगोशिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है पब्लिशर्स के साथ बिकॉज दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ बुक्स टू बी परचेस्ड, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसको कोलैबोरेट करेगी अपने एंड से when they would be tying up, there would be something that would be again benefiting a lot of colleges and universities. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने अभी तक इसके लिए जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो अभी तक नहीं बताया है. अभी ये ड्राफ्ट प्लान ही चल रही है. जो STI की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो अभी ड्राफ्ट मोड में ही है. वंस दिस इज फाइनल दिस वुड बी फाइनली एग्जीक्यूटेड, राइट? नाउ एम क्या है इस पूरी पॉलिसी की? द पॉलिसी एम्स टू प्रिपेयर द फास्ट पेस ऑफ द चैलेंजेस. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह से रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उसके सारे एक्सेस लोगों तक पहुंचाना, खास करके वैसे रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ जो इसमें पर्टिकुलरली इस स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हैं, और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को प्रमोट करना इन द राइट डायरेक्शन वुड बी समथिंग दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पॉलिसी सेट्स द टारगेट ऑफ डबलिंग द नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, और GERD फॉर एवरी 5 years वुड बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन. सो GERED इज समथिंग दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. Now the policy has drafted through the 4-track process consultation and endeavor to implement major challenges through short, medium and long term mission in the project mode. तो ये सारी चीज़ों को 3 तरीके से कवर किया जाएगा, शॉर्ट टर्म के विजन से, मीडियम टर्म के विजन से और लॉन्ग टर्म मिशन के विजन से, ताकि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में. Now coming to the way forward, the policy is to identify and address the strengths and weaknesses of Indian STI, that is Science, Technology and Innovation ecosystem, और ये catalyze करेगी socio-economic development in the country because many students still do not have amount to afford a journal which is a very costly, जो foreign journals होते हैं उसकी prices dollars में होती है and that sum ups to somewhere close to 4,000-5,000 rupees एक journal की price होती है, जहाँ पे स्टूडेंट जो रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको कम से कम 10 से 15 जर्नल रेफर करने पड़ते हैं. तो हेयर दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी और जो ओवरऑल मैंने एक्सपेंडिचर बताया है वो 1500 करोड़ रुपीज़ के आसपास सेव कर सकते हैं.
Now, coming to the other news, that is China denies entry to the WHO expert. The news has been reported in the Hindu, and the same news was also reported in the Indian Express. But I have taken the news from the Hindu because the coverage of the news was better in this newspaper. So, talking about the relevance, this can be very important for your general studies paper too. And at the same time, if you're writing an essay with regards to the pandemic, you can also quote this type of things there in the essay paper. Now, the World Health Organization team who were about to investigate the origin of COVID-19 जो वायरस जो हुई है वुहान डिस्ट्रिक्ट में, उन साइंटिस्ट को चाइना ने एंट्री करने से मना कर दिया है. दे हैव डिनाइड दैट दे वोंट अलाउ एनी WHO साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम टू बी देयर इन द वुहान इन चाइना. So the team was due to study about the origin of COVID-19 that was first reported in the Wuhan. वुहान में सबसे पहले ही केसेस को रिपोर्ट की गई थी और WHO ने इसके लिए टीम बनाई थी. उन्होंने पहले ही इंटीमेशन दिया हुआ था चाइनीज गवर्नमेंट को कि वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट भेज रहे हैं वहाँ पे ताकि वो स्टडी कर पाएँ कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन की जो ओरिजिन्स हैं वो कहाँ से रही है. एंड एट द लास्ट मोमेंट द चाइनीज गवर्नमेंट हैज डिनाइड एंड दे हैवंट अलाउड द एंट्री ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम WHO. Now WHO का क्या रिएक्शन रहा इसमें, जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके मुताबिक ही सेड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द विजिट कुड नॉट गो फॉरवर्ड. अब WHO ने कहा है कि इन दिसंबर ही हैव बीन ग्रांटिंग द परमिशन फॉर द विजिट. जो टीम ऑफ एक्सपर्ट थी वो 12 से 15 लोगों की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी जो कि एक महीने तक वहाँ पे स्टडी करते कि किस तरह से वैक्सीन की आउटब्रेक को बढ़ाई जा सकती है. राइट. तो बात करें जो आउटब्रेक हुई थी खास करके जो कोविड-19 इन्फेक्शंस की, उसकी जो मेन सेंटर थी, जो एपी सेंटर थी वुहान थी. और वहाँ की एक वेट मार्केट है, वो आपने काफ़ी सुना होगा. वेट मार्केट इज़ अगेन अ वेरी फेमस प्लेस वेयर ऑल द एनिमल्स मीट हैज़ बीन शोल्ड. तो ये कहा जा रहा है कि वुहान की जो वेट मार्केट है वहाँ से चीज़ें हो सकता है आउटब्रेक हुई होगी, वहाँ से स्टार्ट हुई होगी. नाउ चाइना कंट्रोलिंग द सर्च. चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया WHO के जो 12 से 15 साइंटिस्ट वहाँ पे आने वाले थे उनको मना कर दिया. और ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूरी रिसर्च है जो वायरस के स्टेट ओन मीडिया है दैट हैज़ बीन प्लेइंग रिपोर्ट कि चाइना सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है एंड दे डोंट वांट कि जो ओरिजिन है वो चाइना के अलावा कोई दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट उसको करें. बट considering the WHO guideline, it would be very pivotal that China should cooperate and it should help other countries to know what was the actual origin of the virus in China. Now coming to the other news, that is boosting India with the maritime domain awareness. ये आपको आज के हिंदू में एडिटोरियल मिल जाएगी. सो यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जो मैरीटाइम अवेयरनेस है इंडिया उसको बढ़ा सकती है और जो दूसरे कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है वो करके जो चाइना की डोमिनेंस है उसको कम किया जा सकता है. राइट. So this would be again important for your general studies paper too. Now coming to the news, the Indian Navy has been on a drive to improve the awareness of the Indian Ocean. Indian Ocean is very significant in India because अगर इंडिया में maritime security की बात करें तो Indian Ocean बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है इंडिया के लिए. और Indian Navy is seeking to expand India's surveillance footprint by setting up radar. कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ रडार स्टेशन स्टैब्लिश करने की बात की गई है. दैट कंट्री इंक्लूड मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश. और कंट्री लाइक मॉरिशस, सेचेल्स, श्रीलंका हैज़ ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड इनटू द वाइडर कोस्टल रडार चेन नेटवर्क. तो इंडियन नेवी की जो एफर्ट है वो ये भी एफर्ट रखी गई है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से किया जाए ताकि जो चाइनीज़ एक्टिविटी है इन द ईस्टर्न ओशन रीजन दैट शुड बी पर्टिकुलरली बीइंग ट्रैक्ड and seas around the Andaman and Nicobar Islands should be particularly in the focus, right? Because we know China has been throughoutly expanding in the South China Sea and in the Indian Ocean region, specifically in the Eastern Indian region. Now, deployment of India's P-81 aircraft, India ने strong action लेते हुए अपने precautionary measures लेते हुए P-81 aircraft को जो allow किया था near seas because of the People Liberation Army, जहाँ पे सबमरीन्स भी लाए गए थे. सो इंडियन नेवी शिप हैज़ बिन पैरोल्ड टू द अंडमान एंड निकोबार चेक पॉइंट्स. और कोई भी अगर कोई परेशानी हो तो इंडिया उस चीज़ के लिए तैयार है. अगर चाइना इफ़ दे आर विलिंग फॉरवर्ड टू contribute any of the malicious work, India would be in a position that they could target this. So P-81 एक प्रिकॉशनरी मेजर है इंडिया की तरफ से. Now neighborhood synergies की अगर बात करें तो मैरीटाइम डोमेन में इट इज़ अवेयरनेस टू बी जनरेटेड इन कोऑपरेटिव सिनर्जी एंड नेबरहुड. तो खास करके कुछ इंपॉर्टेंट 7 इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं दैट इंक्लूड बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया,
Sri Lanka, Maldives, Mauritius, and Seychelles, they would be soon अपॉइंटिंग देयर लाइजनिंग ऑफिसर, राइट, पोस्ट लाइजनिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, जो कि इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो गुड़गांव में बनी है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और सारे लाइजनिंग ऑफिसर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे. फ्रांस ने ऑलरेडी अपने लाइजनिंग ऑफिसर एलोकेट कर दिए हैं. 4 other Indo-Pacific countries that include Australia, Japan, UK and US would also be agreed for the position officer at the center of Indian Ocean region. तो जो ईस्ट इंडियन ओशन रीजन है उसमें डिप्लॉयमेंट की जाए जो लाइजनिंग ऑफिसर है, सो दैट देयर कुड बी अ कोलैबोरेशन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट आर कवरिंग द इंडियन ओशन रीजन. नाउ फ्रेंच कनेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया मूव है दैट इज ऑन द वेस्टर्न एंड द सदर्न वेस्टर्न लिटोरल्स वुड बी फैसिलिटेटेड बाय द फ्रांस एंड की इंडियन स्पेस की जो पावर है दैट इज क्रिटिकल पार्टनर इन टर्म्स ऑफ द रीजन. और हैविंग साइन द लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इन 2019, पेरिस इज कीन ऑन द स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद द मैरीटाइम कॉमन्स. तो पेरिस के साथ हमारी जो फ्रांस के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छी रही है और इंडिया इस चीज़ को और अच्छे पैमाने पे और स्ट्रेंथन करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि वी कुड फैसिलिटेट अ गुड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द नेवी. नाउ इंडियन इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो इंडियन इनिशिएटिव इन द मैरीटाइम डोमेन हैव मोटिवेटेड मोर देन जस्ट ट्रैकिंग द स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, और इंडियन डिसीजन मेकर हैव रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर cooperative tool to fight the transnational crime in littorals. 21 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन ओशन रीजन में अपने कंप्रिहेंसिव पिक्चर मैरीटाइम ट्रैफिक को लेकर के इनेबल किया है एंड दे आर बिल्डिंग द स्मॉल आइलैंड टू बिल्ड द कैपेसिटी टू कम्बैट इन द रीजन. तो सारे कंट्री अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स या थ्रेट को देखते हुए वहाँ कहीं ना कहीं जगह पे आइलैंड बना रहे हैं या अपनी मिलिट्री को दुरुस्त कर रहे हैं ताकि अगर किसी कंट्री के साथ खतरा हो तो वो अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग बना सके. एंड इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट की अगर बात करें GSAT-7 है, दैट मीन्स सून फैसिलिटेट द टाइम शेयरिंग ऑफ द मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन विद द पार्टनर्स. तो जितने भी इंडिया के साथ पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ GSAT-7 इनकी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट इंडिया इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट. नाउ कमिंग टू द MCQs क्वेश्चन ऑफ द डे, द फर्स्ट क्वेश्चन would be coming from economy. Consider the following statement with regards to tax haven. Tax haven are the countries that have low or near zero tax rate. They do not share any financial information with the tax authority. So what do you feel is the correct answer? Just let me know in the comment section down below whether it is A, B, C or D. You can write that in the comment section. Coming to the second question from the Indian polity. The governor is elected by a specially constituted electoral college. The office of the governor of the state is not in employment under the central government. So what you have to do? You have to just choose the correct option A, B, C and D and write your answer in the comment section. If you have any additional information that also you want to share with us, you can write that in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.